Hi everyone, this is KP Kandelwar and we welcome you here to our podcast and I am welcoming our special guest Mr. and Mrs. Juneja, directors of Silver Bell School, Rohtak, here in our podcast. Hello and hello sir. मैम आप अभी इस प्रोफेशन में इतने टाइम से हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपको. What was the motivating factor जो आप इस प्रोफेशन में आए and then you have so much experience in different things, but इस प्रोफेशन में आने के पीछे का रीज़न क्या था? What I felt during my journey of 40 years of teaching, what I felt that education is not about simply textbooks, rote memory, textbooks and examinations. It's about quality education. It's quality education as well. And what I observed in Rohtak was that parents are eager to invest into the future of their children. That really motivated me, and so I created an institution like Silver Bell Public School, and it has been doing its wonderful job in the field of education for the last 24 years. How do you feel कि जो सिल्वर बेल स्कूल है वो और स्कूल से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग किस तरह से अलग है या किस तरह का अलग एक्सपीरियंस शेयर करता है? Silver Bells differentiates itself for its academic excellence. We are focusing on academic fundamentals. हम बच्चों की जड़ को मजबूत करने में विश्वास करते, दिखावे में नहीं. I can also purchase some fancy things to attract the people, but that is more like business-like. But I have a passion for making the fundamentals of students strong. हाँ जी. For that matter, I focus on teaching methodologies, on quality of my staff, and of course, they're monitoring their outcome also. Sometimes my teachers, they write down like learning outcomes, they write down, and I'm not satisfied. I call them personally and talk to them. Is it the learning outcome? Learning outcome is what you have taught them. Has the child assimilated that? जी. That's what we focus on. मैम जो आपका रिस्पॉन्स रहा है ना उसमें हमें ये समझ आता है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ट्रेमेंडस रहा है. और मुझे ये लगता है कि आपने ना अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करके उनकी जो भी पॉजिटिव चीज़ें थी ना वो इकट्ठा करके और आपने सिल्वर बेल स्कूल्स में डाल दिए है ना. फिर भी मैं एक बार समझना चाह रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, किस किस तरह के इंस्टीट्यूशंस के साथ आपने काम किया है. प्लीज़ एक बार थोड़ा. Well, Kapil, I've been very fortunate that I started my career. मैंने अपने करियर की शुरुआत जो है एक मिशनरी स्कूल से करी. जो वैल्यूज एक मिशनरी स्कूल देता है वो मैंने पूरी तरह से अपने आप में इम्बाइब कर ली. लाइक एंड आई टुक टीचिंग एज ए मिशनरी एंडेवर. I worked for St. George's Batinda, I worked for St. Xavier's, Sirsa, I worked for even Navy also. And I worked as a passionate learner as well as passionate facilitator as well as a passionate teacher as well. And of course, to end as a passionate administrator also. Yes, ma'am. ये सब चीज़ें जो मैं अपनी झोली में समेट करके लाई वो मैंने सिल्वर बेल्स में डाल दी. So what I feel is I'm very close to my students. I know if I feel that my student is suffering from something, is feeling some positive funds at home, positive attention from the teachers, or is being neglected by teachers, I can from their smiles, from their faces, I can read those sentiments, and accordingly I adopt that attitude towards them so that I become a balm on their pains. I become a balm for their pains. Try to soothe those wounds which they might have incurred somewhere else. So Silver Bells इस बात के लिए मैं कहती हूँ कि अपने बड़े फख्र से कह सकता है कि हम ना केवल अकेडमिकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ह्यूमैनिटी भी हमारे में बहुत है. ह्यूमनिज्म बहुत है. अगर एक बच्चा फीस नहीं पे कर पाता किसी वजह से, हम उसको वो मेरे पास आया था, मैम मैं फीस नहीं, तो आई से ठीक है तू पढ़ता जा, तू अपना करियर बना, दैट विल बी द रिवॉर्ड आई विल बी गेटिंग. Yes, ma'am. That's how. And when I completed my last disclosure, I forgot to add कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में कितनी पैशनेट हूँ.
क्योंकि I strongly believe a child learns formally only 20% हाँ जी, and informally out of the classroom 80%. बिल्कुल नहीं. So I have my balanced focus on extracurricular activities also. हाँ जी. Well, the reason why we contacted you and requested you for this podcast ना, हमें इस पॉडकास्ट के लिए जो आपको रिक्वेस्ट किया उसका रीज़न ही ये था बिकॉज हमें 2-3 चीज़ें आपके बारे में बहुत अच्छा पता चले कि जैसे आपके स्कूल में हमें कोई ऐसा केस नहीं सुनाई दिया कि यार फीस पे नहीं करी है तो यार बच्चे को निकाल दिया स्कूल से. हमें आपके स्कूल में सबसे कम ड्रॉप आउट रेट मिला. मतलब अगर बच्चा आपके स्कूल में आ गया है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बच्चा स्कूल को छोड़ के जाएगा 10-12 से पहले. और जो आपका जो फोकस एकेडमिक्स पे होता है ना, वो हमें और कहीं दिखाई नहीं दिया. ठीक है, रोहतक में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बहुत फैंसी चीज़ों के अराउंड बात कर रहे हैं या फैंसी चीज़ों को लेकर मार्केटिंग कर रहे हैं, बट हमें ऐसी कोई चीज़ आपके स्कूल के साथ नहीं दिखाई दी. वी फाउंड इट मोर फोकस टुवर्ड्स एकेडमिक्स और जो बेसिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है. तो इस वजह से वी फोकस मोर ऑन कि यार आपके साथ हम किसी तरह से पॉडकास्ट करें और लोगों को बताएं कि क्या वैल्यूज़ ज़रूरी हैं एक स्कूल में. ठीक है, इसी के रिलेटेड है ना, मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ. एनी एडवाइस फॉर अदर स्कूल्स? ठीक है, जो भी आसपास स्कूल्स हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि उन्हें एक तो क्वालिटी एजुकेशन वो बच्चों को दे पाए, दूसरा जो उनका कंसर्न है कि भाई हमारे पास ज़्यादा एडमिशन्स नहीं आ पाते हैं, वो एडमिशन्स भी उनके पास आ पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई फील, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो स्टाफ होता है वो बड़ा दबा होता है. हमेशा उनको इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब रहती है. उनको लगता है कि कहीं इफ वी स्टेप आउट ऑफ आवर डोमेन perhaps we lose our job. And my main focus is on empowering my teachers. I feel most delighted on a day when a teacher comes with a decision. Decision making is an art, and many people don't possess that art. And I am trying to inculcate that habit amongst my teachers, that they should take decisions. They should take decision, and right decision at the right time really makes a difference with the career of our children. Right? So my advice to the other institutions also, those who are really anxious to grow, that they must empower their staff. They must have a stable staff. They must take the personal and social needs of their staff also under consideration. Because when a stable staff is there, they really get into the real, even you can say so-called the out of school life of the children also. And the real benefit of the students is their core value. That value, once they inculcate, I feel there is no impediment, there is no obstacle for the progress and the growth of the school. तब देखिए, रोहतक की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है ना, वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. बट आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, अब को क्या लगता है पिछले 10-20 साल में रोहतक की एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या-क्या चेंजेस आए हैं? से हम लोग इस प्रोफेशन में आए हैं तो मैंने ये देखा है कि अब काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर इस फील्ड में आ गए. पहले ऐसा नहीं था. पहले ज़्यादातर लोग एजुकेशनिस्ट होते थे तो स्कूल रन किया करते थे. आजकल क्या है कि बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स आ गए हैं और इतनी हाई फ़ी, रादर आई शुड से एक्सट्रीमली हाई फ़ी चार्ज करते हैं और वेरी हाई ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी चार्ज करते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट कि हम ये प्रोवाइड करेंगे. ज़्यादातर शोशेबाजी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और पेरेंट्स भी शायद इन्हीं चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं. तो ऐसा भी देखा गया है कि बुक्स भी, ड्रेस भी और सब कुछ कैरी स्कूल से ही लो या पर्टिकुलर शॉप बताई जाती है, वहीं से परचेज किया जाए, ना कि पेरेंट जाए अपना मार्केट में उसको जाके परचेज कर. तो मतलब वो फील आती है ना सर कि उससे कि भाई कहीं ये स्कूल है ना पढ़ाई पे कम और बिजनेस मॉडल ज़्यादा बन गया. हाँ, एग्जैक्टली. बिजनेस मॉडल के बेस पे ही चल रहे हैं, ये स्कूल चला रहे हैं अपने आप को, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई फी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे इतना फोकस ना करते हुए स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ पे भी कम ही फोकस किया जाता है. क्योंकि जब तक स्टाफ स्टेबल नहीं होगा तब तक एजुकेशन हम
प्रॉपर प्रोवाइड कर नहीं सकते। हर साल 6 महीने में टीचर बदला होगा तो बच्चा भी जो है उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकता नए टीचर के साथ। मैम जैसे अभी सर ना स्टेबिलिटी ऑफ टीचर्स की बात कर रहे थे, तो एक चीज़ मेरे को क्लिक करी कि मैंने जो बड़े बड़े स्कूल्स में देखा है ना आजकल, जो यहाँ के बहुत पॉपुलर स्कूल्स हैं, उनमें क्या होता है कि टीचर्स को वो रखते हैं 8-9 हज़ार में। जब ये लगता है कि टीचर सभी और चार्ज करेगा ना, फीस बढ़ेगी, वो टीचर को रिप्लेस कर देते हैं, फिर नई टीचर आती है वही 8-9 हज़ार में। एंड उससे मेरे को ये फील होता है कि बच्चों की जो क्वालिटी, एजुकेशन की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत हैम्पर होती है, बहुत ख़राब हो जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड आपके स्कूल की क्वालिटी की है ना, टीचर है ना 20-20, 22-22, 25-25 साल से हैं आपके स्कूल के, तो वो आपने किस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि यार हमारे पास है ना ये क्वालिटी, यदि भी टीचर आ गया और वो हमारे स्कूल में रहे, चाहे आपको फीस देनी पड़े या किसी भी तरह से, मतलब आप किस तरह से मैनेज करते हैं वो? क्वाइट अ फ्यू फैक्टर्स, काफ़ी सारे इसमें कई फैक्टर्स हैं। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बहुत ही टाइम पे सैलरी देते हैं। कई स्कूल्स, आपने 8-9 की बात की, मैं उससे थोड़ा डिसएग्री भी करती हूँ, कई लोग ज़्यादा सैलरी भी देते हैं। हाँ जी। प्रॉमिस बहुत बड़े बड़े करते हैं। पहली बात तो टाइमली सैलरी नहीं देते। मैंने एक ऐसा भी इंस्टेंस सुना कि एक स्कूल, बहुत नामी स्कूल है उसका, ये 5-6 महीने फीस नहीं, सैलरी नहीं दी। वो फिर उसको नेगोशिएट किया कि 20,000 ले लो, 25,000 ले लो, एवरेज लगाओ तो बहुत ही कम है। बट वी आर वेरी फेयर इन आवर डीलिंग्स, वेरी फेयर इन आवर डीलिंग्स, एंड ऑफ कोर्स वी डू टेक केयर ऑफ द, you can say, the personal esteem, the teachers' self-esteem, which matters the most. बिल्कुल आपने देखा होगा कि लेडीज को सबसे ज़्यादा हर्ट करता है अगर उनकी कोई इंसल्ट करे, और दैट टू पब्लिक इंसल्ट। वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, वेरी केयरफुल अबाउट इट। हम अप्रिशिएट तो पब्लिकली करते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज कभी पब्लिकली नहीं करते। दैट वी डू इन प्राइवेट। That we have a method that we convey that this is to be amended, this is to be reformed, this is to be bettered. And जब टीचर की सेल्फ एस्टीम की तरफ ध्यान दिया जाता है और उनकी सैलरी टाइम पे डिस्पर्स होती है, उनके जो बच्चे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, उनको भी हम प्रॉपर कंसेशन देते हैं। They are also in our schools only. It is record with us. All our teachers have their kids in our school. हाँ जी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पेरेंट भी पूछता है कि मैम आपके बच्चे क्या इस स्कूल में पढ़ते हैं? अगर स्कूल अच्छा है तो आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? तो वी आर वेरी प्राउड टू से दैट कि हमारे सब टीचर्स के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ जी। हम ना केवल टीचर का ध्यान रखते हैं, टीचर के बच्चों का भी ध्यान होता है। मैम मेरे को एक चीज़ और समझनी है आपसे कि मैंने एक जो मॉडल होता है ना कि बच्चे टीचर्स के साथ किस तरह से कनेक्शन बना रहे हैं, एंड स्पेशली जब अभी हॉलीडेज़ का टाइम चल रहा है, विंटर वेकेशन ये हो, तो इस टाइम पे बहुत कम स्कूल्स में ना एक कॉन्सेप्ट होता है होम पीटीएम का करके। एंड वो चीज़ है ना, मैंने आपसे यहाँ रोहतक में पहली बार सुना कि आप रेगुलर होम पीटीएम करवाते हैं। तो वो किस तरह से मैनेज होता है और किस चीज़ पे फोकस पॉइंट रहता है कि यार अगर हम होम पीटीएम कर रहे हैं तो किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा होता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं जो है ना एडमिशन बढ़ाने के नाम पे भी वो चीज़ बोलते हैं कि यार हमारे टीचर्स को भेज देते हैं होम पीटीएम के नाम पे, और वो है ना एडमिशन निकालने के लिए घर घर घूमते हैं। आपका फोकस किस चीज़ पे रहता है होम पीटीएम के टाइम पे? स्टूडेंट ही हमारा फोकस रहता है। पेरेंट टीचर्स मीटिंग आप इसका फुल फ्रेम जैसे कहेंगे, मैं इसको अगर इसका रीफ्रेम कर दूँ इसका नाम, हाँ जी। तो इसको स्टूडेंट मीटिंग ज़्यादा कहूँगी मैं इसको। हाँ जी। स्टूडेंट्स होम मीटिंग, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो बेसिकली जब वो घर में कांटेक्ट करती हैं तो फ़ोन पे कांटेक्ट करती हैं। हाँ जी। फ़ोन पे करती हैं तो फ़ोन से पूछती हैं बेटा आज आपने क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया और क्या डिफ़िकल्टी आई, आज आपने अपना काम अपलोड क्यों नहीं किया, हाँ जी। क्या आपको फ़ोन कितने बजे मिला, तो आप क्या पापा फ़ोन साथ ले गए थे क्या? कई घरों में एक ही फ़ोन होता है। हमारे पास बहुत एफ्लुएंट फैमिली से बच्चे नहीं हैं, हाँ जी। तो एक पूरी फैमिली में एक ही स्मार्टफोन है, तो वो बारी बारी से यूज़ करते हैं। हाँ जी। तो फिर टीचर पूछती है कि आपको कितने बजे फ़ोन मिला, इसलिए आपने शायद काम लेट आपने अपना अपलोड किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब बच्चा अपलोड करता है अपना काम, जैसे इन दिनों हम इनको इकट्ठा भी होमवर्क दे सकते थे ना छुट्टियों का, नहीं दिया हमने। हम डेली होमवर्क दे रहे हैं उनको, हाँ जी। डेली होमवर्क दे रहे हैं और डेली उनको कहते हो अपलोड करो।
फिर सेम डे टीचर उसको करेक्ट करके वापस उसको भेजती है। तो एक कनेक्शन जो बना रहता है, कांस्टेंट कनेक्शन जो बना रहता है, उससे जो है बच्चे को भी लगता ही नहीं कि मैं अपने टीचर से डिटैच्ड हूँ। माई टीचर इज ऑलवेज अटैच्ड विद मी। जो एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ कनेक्शन है, दैट मैटर्स अ लॉट। मैम हम जो मतलब वेल टू डू फैमिली से होते हैं ना, वो ये चीज़ समझ ही नहीं सकते हैं, जैसे जो आप अभी बता रहे हैं ना कि यार बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर में ना एक ही स्मार्टफोन है, एक ही फ़ोन है। मैम दैट्स वेरी कंसिडरेट ऑफ यू ना, कि आप इतना सारी चीज़ें सोच रहे हैं एंड कंसिडर कर रहे हैं। एंड पर्सनली व्हाट आई फील कि जो गांव से जो बच्चे आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हर पेरेंट है ना अपने बच्चे को एक अलग से स्मार्टफोन दे पाए कि ये फ़ोन तो इसी का है कि ये पढ़ ले आराम से। ज़रूरी नहीं है वो सब भी अफोर्ड कर पाए, है ना, फाइनल बात यहाँ पे अफोर्ड करने की भी नहीं है। तो मैं चाहती भी नहीं कि एक हैंडसेट, डेडिकेटेड हैंडसेट एक बच्चे को अलग से मिले। अच्छा भी, क्योंकि दैट इज हैविंग अ वेरी बैड इन्फ्लुएंस ऑन द, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू फोन्स, नो। हाँ जी मैम। हाँ, तो वो तो जितना उनके पास अवेलेबिलिटी होगी फ़ोन की, उतनी ज़्यादा एडिक्शन बढ़ेगी। हाँ जी। सो मच सो आपने बहुत न्यूज़ में भी सुना होगा कि बहुत बच्चे अनवारंटेड, जो नहीं उनको देखना चाहिए, जो चीज़ें वो देखते हैं फिर जब उनके पास फ्री एक्सेस होती है फ़ोन पे। तो वो अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है कि दे हैव फ़ोन फॉर अ लिमिटेड पीरियड। और मेरी हमेशा काउंसलिंग पेरेंट के लिए यही होती है कि आप जितनी देर अपनी निगरानी में हो उतनी देर फ़ोन दो बच्चे को, वैसे फ्री एक्सेस मत दो फ़ोन। हाँ जी मैम, एक चीज़ है ना बहुत क्रूशियल होती है जब कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को किसी स्कूल में डालता है ना, उसको ये रहता है कि मेरे बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, कमियां हैं या खूबियां हैं, वो मेरे तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। करेक्ट। मेरे को स्कूल बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहा, टीचर्स मेरे साथ किस तरह से बात कर पा रहे हैं, या प्रिंसिपल मैम से मैं किस तरह से बात कर पा रहा हूँ, या डायरेक्टर मैम से किस तरह से बात कर पा रहा हूँ। वो एक पेरेंट के लिए बहुत इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, बट पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। उस चीज़ को आप किस तरह से एड्रेस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हर पेरेंट को पर्सनली जानती हूँ, मैं ही नहीं, मिस्टर जुनेजा ऑल्सो। और आप, यू विल बी सरप्राइज टू नो, हम हर पेरेंट को उनके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। हाँ जी मैम। अरुण, वरुण, दिस इज हाउ वी टॉक टू देम। पेरेंट्स का मे बी, मान लीजिए आप ही एक पेरेंट हैं, आप स्कूल में बच्चे को ड्रॉप करने के लिए आए हैं, आपका मेन मकसद बच्चे को ड्रॉप करने का, उसकी बस मिस हो गई, आप बस उसको ड्रॉप करने के लिए आए हैं। लेकिन he will personally come to my office, he will personally go to Mr. Juneja's office, say मैं आपको हेलो करने आया था। अच्छा। That bonding we have, that bonding we have with them. हाँ जी हाँ जी। Okay? और खुशी मुझे तब होती है जब मुझे उनका रिजल्ट मेरी टिप्स पे होता है, बच्चों का रिजल्ट मेरी टिप्स पे होता है, क्योंकि उनकी मैं रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड मेरे टिप्स पे होता है। मैं जब बच्चे को, एक पेरेंट को जब ये कहते हैं क्या बात है इस पर अरुण ने मैथ्स में अच्छा नहीं किया, क्या बात हो गई? हाँ जी हाँ। अरुण 2 दिन से छुट्टी पे था, क्या बात थी? Was he well? They feel so delighted, they feel so bonded. स्कूल के साथ इतने जुड़ जाते हैं इस बात से कि वो सोचते हैं कि जहाँ मेरे बच्चे, आप nobody wants to be lost in the crowd. बिल्कुल। कोई भी भीड़ में तो खोना नहीं ना चाहता अपने आप को। हाँ जी मैम। शायद आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी, मैंने 11th में पढ़ाई थी, कि वो होता है कि एक बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, एक बच्चा छुपा है और छुपा ही रह जाता है, उसको कोई सीख ही नहीं करता, उसको कोई ढूंढता ही नहीं, और उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी हर्ट होती है कि मेरी कोई मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मेरे को किसी ने ढूंढा ही नहीं। हाँ सो सेम इज द केस विद एवरी लर्नर। बिल्कुल। हर लर्नर जो है वो एक अपनी हैसियत रखता है, और उस हैसियत को रिकॉग्नाइज करना वो हमारा काम है, और मेरे टीचर्स का भी। ये चेन रिएक्शन मेरे से शुरू होती है, जुनियर साहब से शुरू होती है, एंड इट गोज डाउन टू द रूट्स, जी नीचे तक जाती है। मैम, अभी है ना बहुत सारे पेरेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि बिकॉज या तो बच्चा टीवी वगैरह ज़्यादा देखता है या फ़ोन देखता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो अटेंशन स्पैन होता है ना, कि बच्चे कितनी देर पढ़ सकते हैं, कितनी देर कंसिस्टेंटली कोई काम कर सकता है प्रोडक्टिव, वो बहुत कम हो गया फिलहाल। तो आप उसको किस तरह से एड्रेस करते हैं? इस बात के लिए ना मैं सही मायने में पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। हाँ जी। जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये फ़ोन एडिक्शन जो है, जो स्क्रीन एडिक्शन है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हुई पड़ी है। जितनी हमारी लाइफ बिजी होती जा रही है, मीनिंग पेरेंट्स की लाइफ बिजी होती जा रही है, उतना बच्चों का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। बच्चों के पास टाइम नहीं है,
बच्चों को पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो उनको बिजी करने के लिए वो जो है स्क्रीन के लिए एडिक्शन हो जाती है। क्योंकि स्कूल्स तो इनवेरिएबली कोई भी स्कूल नहीं अलाउ करता कि वहाँ पे फ़ोन यूज़ किया जाए जी। ऐसा हम नहीं करते, लेकिन पेरेंट्स घर पे ही करते हैं। और पेरेंट्स इतने हेल्पलेस आके हमें मजबूर होके ऐसे कहते हैं क्या करें मैडम, खाना नहीं खाता जब तक इसके आगे फ़ोन नहीं रखते। तो फिर इसके लिए हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। पेरेंट्स की काउंसलिंग मैं उनको कहती हूँ भाई अपने बच्चों के सामने इतने हेल्पलेस मत बनो। एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, तीसरे दिन अपने आप लाइन पे आएगा। जब बच्चे स्कूल में बिना फ़ोन के खाना खा लेते हैं, घर में क्यों नहीं खाता? एग्जैक्टली। तो वो कुछ एज फैक्टर लगा लो या कुछ हमारा एक्सपीरियंस लगा लो, उसको देखते हुए मानते हैं पेरेंट्स, फिर काफ़ी मानते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। मेरे स्कूल में एक आराध्या नाम की लड़की है, वो उसको इतनी ज़्यादा स्क्रीन एडिक्शन थी कि उसको so called she had been labeled as a special child or so called a slow learner or whatever you call it. स्पेशल चाइल्ड तो कह ही सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चे को एक पर्टिकुलर एक नामी ग्रामी स्कूल में डाला। हाँ जी। वहाँ पे उनसे बच्चा टैकल नहीं हुआ, उन्होंने फिर स्क्रीन के आगे डाल दिया उसको टैकल करने के लिए फिर स्क्रीन पे डाल दिया। तो ये जो उनको लग रही थी ये प्रॉब्लम उनके बच्चे के साथ है, वो और बढ़ गई। हाँ जी। उन्होंने हमारे स्कूल में डाला, उन्होंने बोला 1 महीना हम चेक ट्राई करना चाहते हैं। आई सेड ओके, अगर ऐसी बात है, वैसे तो वी डोंट परमिट कि ट्राई करेंगे स्कूल को। हाँ जी। है? तो हमने बोला ठीक है आप लगाइए। तो उस बच्चे को हमने रखा और उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं देखने दी उसको कल हमने एक्टिविटीज़ में, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में, हाँ जी, मैनुअल एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व किया, तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। पिछली फरवरी की बात है, मेरे स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी और मैं बहुत बिजी थी। वो पेरेंट 1.5 घंटा मेरे ऑफिस में वेट करता रहा। तो मैंने बोला आप किस लिए मेरे इंतज़ार कर रहे थे? कह रहे कि आपका धन्यवाद करने के लिए कि मेरा बच्चा who had been labeled as a special child, I find him very normal। हाँ जी। तो आप इस तरह से लेके चलिए कि अगर हम चाहें और एफर्ट्स डालें, उसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल है। टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है। आई कैन नॉट अंडरमाइन द रोल ऑफ अ टीचर, ओनली द एडमिनिस्ट्रेटर कांट डू इट टुडे। वो मतलब मेरी टीचर के पैर पकड़ के उसका धन्यवाद करके गया कि आपने मैडम इतना टाइम दिया मेरे बच्चे को, इंडिविजुअली टाइम दिया कि मेरा बच्चा ही हैज़ बीन वेन्ड ऑफ द स्क्रीन एंड नाउ इंडल्जिंग इनटू द फिजिकल एक्टिविटीज। मैम देखिए, स्पेशली हरियाणा के जो पेरेंट्स हैं ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट तो ये बोलते हैं कि यार बच्चे को ना चाहे मारो पीटो, किसी भी तरह से उसको डिसिप्लिन करो, ठीक है, वो ओल्ड स्कूल वाला टाइप, ओल्ड स्कूल साइकोलॉजी। और एक पार्ट है ना पेरेंट्स का, वो ये बोलते हैं कि यार मेरे बच्चे के ना हाथ नहीं लगाना है, ठीक है, इस पे डांट डपट नहीं करना है, इसके मारना पीटना नहीं है, प्यार से समझाओ, प्यार से सीख लेगा। तो आप किस तरह से दोनों का बैलेंस बना के किस तरह से वो अप्रोच लेके चलते हैं, हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए। हाँ, ये लेबल लगा हुआ है हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे कि वी आर वेरी लीनिएंट, क्योंकि पेरेंट्स अभी भी पुरानी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड वाले। जी। वो सोचते हैं कि नहीं, डंडे से इनको सीधा करो, डिसिप्लिन करो। मैम आपको खुली छुट्टी दे के जा रहे हैं, आप जो जैसे मर्जी करो, बट बच्चा मेरा पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आज के बच्चे मतलब वी हैव टू अडैप्ट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। आजकल बच्चा ऐसा नहीं है, बच्चा जो डंडे से सुधर सके या जैसे प्यार से, मेंटरशिप, अपनापन, बच्चे को अपनापन चाहिए जो है। मेंटरशिप इज अ सेकंड नेम फॉर अपनापन, आई वुड से। तो अब बच्चे को हम ना, एक सबसे बड़ी बात है कि हम वी मेक श्योर बच्चे को जो है जुडिशियस ट्रीटमेंट मिले, जिसको फेयर कहते हैं। आपने अभी यूज की थी एक टर्म, फेयर एंड फर्म। हम वी ट्राई टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेयर टू द स्टूडेंट्स। जब हम फेयर हैं तो फर्म भी हैं। एक वी स्ट्राइक रियल बैलेंस बिटवीन फर्मनेस एंड फेयरनेस। बच्चे एक्सेप्ट करता है, एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स ऑफ सिल्वर बेल्स। हाँ जी।
राइट। ऐसा है छुट्टी वाले दिन बच्चे आगे स्कूल में कहते हैं मैम बताओ काम क्या करना है, आज स्पोर्ट्स डे है, काम क्या करना है, और आए बच्चे आए। हाँ, और बच्चों ने अपना इतना सर्विस, सोशल सर्विस करी। आई वॉज रियली डिलाइटेड। ठीक है ना, स्पेशल जो मेरे को चीज़ लगी ना कि आप है ना आसपास के जो गांव हैं उनसे भी जो स्टूडेंट्स आते हैं ना उनको शहर के स्टूडेंट्स के साथ मिला के सबको एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ ना सबको एक साथ पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से। इसमें इस साइड आपके सिल्वर बेल स्कूल के पीछे चमारिया गांव आ गया, ससरौली आ गया, जिंद्रान, फिर इस साइड करते करते फिडवाली, बामनवास, मकरवली, बसंतपुर, ये सारे गांव के बच्चों को आप सबके साथ मिला के पढ़ाते हैं। और क्या आपको ऐसा कुछ फील होता है कि यार वो बच्चे किसी तरह से अलग हैं, या आप बिल्कुल सबको साथ मिला के एक ही अप्रोच के साथ पढ़ाने का कोशिश करते हैं? क्लासरूम में तो बिल्कुल दे आर इक्वल, और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जो रूरल टैलेंट है इवन इज बेटर दैन द अर्बन टैलेंट आल्सो। और स्पोर्ट्स में तो उनके बराबर कोई है ही नहीं। स्पोर्ट्स में तो बहुत वो आगे होते हैं, और हमने देखा कि उन जो गांव के लोगों की इच्छा भी रहती है और बच्चों का भी रुझान जो होता है वो स्पोर्ट्स की तरफ बहुत होता है। तो हमारे जो है हमने बहुत फोकस रखा है, हमने भी अपने आप को इम्प्रूव किया है इस बात में, क्योंकि हम पहले इतने स्पोर्ट्स की तरफ नहीं थे इंक्लाइंड, लेकिन हमने जब बच्चों का रुझान देखा तो हमने अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज किया, और हमने बहुत स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वहाँ बढ़ाई हमने वहाँ पे। और वहाँ पे हमने अभी क्रिकेट के जो है नेट प्रैक्टिस के लिए हमने फैसिलिटी दी, वहाँ पे हमने वॉलीबॉल, हमारे बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ जी। आई चैलेंज के कोई भी अगर आके फ्रेंडली मैच करे हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चे आगे नहीं आने देंगे किसी को। अगर कबड्डी में आ जाएं तो कोई हमारे बच्चे किसी को पछाड़ देंगे, सभी को पछाड़ देंगे। हाँ जी। हमारे गांव के बच्चों का स्पोर्ट्स टैलेंट बहुत है। हमारे पास एक बच्चा है आदित्य नाम का, 12th में अभी, वो अंडर 19 नेशनल लेवल पे खेल के आए, और वो हमारा स्पोर्ट्स कैप्टन भी है। बहुत ऐसे बहुत बच्चे ऐसे हैं। एक हमारे पास एक और बच्ची है, वो भी CBSE गेम्स में स्टेट लेवल खेल के आई है, जूडो, कराटे, मतलब। पर मैं अप्रिशिएट करूँगी एट दिस जंक्चर, हालांकि मैं बाय नेम किसी को अप्रिशिएट नहीं करती, हमारे एक स्पोर्ट्स टीचर है मिस्टर मोहनलाल, इतनी एफर्ट्स डालते हैं। वो स्कूल के बाद भी रुके रहता है कि बच्चा खेलना चाहता है तो मैं रुकूंगा, उनको खिलाते हैं वो। और वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। अभी भी उनकी रिक्वेस्ट पे हमने स्कूल के साथ ही लगती ज़मीन खरीदी है, वहाँ पे हम स्पोर्ट्स नर्सरी शुरू करने जा रहे हैं वेरी सून। हाँ जी। बाय द ऑनसेट ऑफ न्यू सेशन शायद हम वहाँ पे एक प्रॉपर स्पोर्ट्स एरिना एक अलग से तैयार करवा देंगे, ताकि और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम दे सके बच्चों को स्पोर्ट्स की। मत समझ लेना कि मैं जो मेरे रूरल स्टूडेंट्स हैं सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अच्छे हैं, वो एकेडमिकली भी बड़े साउंड होते हैं, और हम बस उनको यहाँ बुलाते हैं ना, उनको पॉलिश करते हैं और वो हमें रिजल्ट देते हैं। फिर वो रिजल्ट देते हैं क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी से भरे हुए होते हैं। वो क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट स्टेप फॉर लर्निंग। हाँ जी। तो उनमें क्यूरियोसिटी भरी होती है, वो एनवायरनमेंट उनको नहीं मिला, इसलिए वो दे आर फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। यहाँ आते हैं, दे मिक्स अप विद अदर स्टूडेंट्स, और एकेडमिकली दे आउटशाइन द अदर्स। बिल्कुल। दैट्स व्हाट। तो इसको मत सोचना कि मैंने उनका स्पोर्ट्स का ही टैलेंट आपको बताया है, दे आर एकेडमिकली आल्सो वेरी साउंड। मैं पर्सनली उस एरिया से आता हूँ, मुझे पता है मेरे भाई बहन के बच्चे वो खेल में, पढ़ाई में आप किसी को बोल दो वो सबको रगड़ देंगे, ठीक है। और मैं उस चीज़ का बहुत आभारी हूँ कि ना आप सिल्वर बेल स्कूल में उन सारे गाँव के बच्चों को इंक्लूड करते हैं, सभी बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, उनको उसी तरह से पॉलिश अप करते हैं कि हाँ यार आप बच्चा है, आप मेहनती हैं, हम आपको है ना मेहनत करना और अच्छे से सिखाएंगे, हम आपको उस डायरेक्शन में मेहनत करना सिखाएंगे। तो बच्चा पॉलिश अप होकर और बहुत अच्छे फिर आगे अपना करियर बना पाता है, एक बहुत अच्छी फाउंडेशन के साथ आगे चल पाता है। प्राउड मोमेंट है या प्राउड फीचर है हरियाणा का। यहाँ के लोग जो है आर्मी में बहुत जाते हैं। हाँ जी। आर्मी में बहुत जाते हैं, और ख़ास कर रूरल एरिया के बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होता है उसके लिए। उनके लिए प्री रिक्विजिट होता है कि स्पोर्ट्स में एक्सेल करना, पहली बात हो फिजिकली उन्होंने क्लियर करना होता है। पर मैं वेरी प्राउडली आई वुड से कि हमारे बहुत सारे बच्चे आर्मी में गए, आर्मी में सिलेक्शंस हुई हैं। आर्मी और जैसे फोर्सेस में, मतलब आर्म्ड फोर्सेस में लगा लो, आर्म्ड, क्योंकि एयर फोर्स में भी गए हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। आर्मी
वो रिटर्न भी क्लियर करते हैं हाँ जी। और जो है स्पोर्ट्स में सैनिक स्कूल में भी हाँ। बच्चे एडमिशन ले जाते हैं। हाँ बहुत सारे